what more can we do in GeoGebra? So in this session, we are basically understanding how the scripting and the logic features works in GeoGebra. Okay. So before starting, there are a couple of ground rules which I want to establish. So basically, practice makes perfect. So when we are doing it, try side by side. Okay. For me, communication does matter. Okay. So if you have any doubt, question, just ask it out and raise your hand or ask, but do not disturb others when you are asking any sort of question. Okay. So in today's now, so highlight. So basically, we are working on logics and scripting. Right? So very basic for those who do not understand anything. So we will working only on three different logic operations and or not gates. Okay. Only one logic command we will be working on if else condition, and how we see how we can integrate those two conditions within GeoGebra to write simple code or something. Okay. To demonstrate this simple working, we will create some simple functionalities. How to start an animation, how to stop an animation, what are if else conditions. Okay. Before starting this now, so just wanted to have like, why do you think we need the idea of scripting? Can't we live without it? Any thoughts you have, any views? मुझे लगता है स्क्रिप्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि स्क्रिप्टिंग से हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है रादर देन जो प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं वो सारे शायद उनसे ज़्यादा इतना कंट्रोल ना मिले जितना हमें स्क्रिप्टिंग से मिल जाएगा. Okay, so we can have more control, right? More control and access. What else do you think can be the reason for learning scripting? चीजें कर सकते हैं. So suppose there's a loop or you want to call the function again. So scripting say it becomes easy or correct. So function execution will help us to basically loop में चलाना things or whatever we want. Okay. So it helps us to customize our program basically. Automate. Huh? Any other thought process? So for me, scripting, it definitely gives more control and access, more customizable. It also gives me the feature to adapt. So what happens is, if you learn one scripting language, right, you can adapt to different platforms also. Okay. So for me, if I want to go to professional game development or professional game architecture, it is necessary I understand the basics of it. So learning a little bit about scripting, how the logic works, will help you to easily adapt in future to other gaming platforms. So you know that in Unity, Focus, or we have Unreal, they use different type of scripts. So there is JavaScript, TypeScript, there is C++, C#. So basic logic will remain the same, only the syntax will change. Okay. So any program, any code you are writing, the logic will remain always the same. However, the syntax will change depending on the language or the platform you are using. Okay. Same will go for HTML as well. Just to tell you a brief of the GeoGebra. So GeoGebra basically is a Java-based script-based program. So if you look at the codes, right, whatever we code we write, right, so there are two components. Either we can write in GeoGebra script, which is an inbuilt script for the GeoGebra, okay, or we can write in JavaScript. Whatever you do, that code will always be converted to JavaScript itself, and then it will be executed. Okay, so GeoGebra script is basically a toned down version, so that the people who do not understand language or coding can even use that for their daily use. So it doesn't have very complex structures or complex mechanism. Also, GeoGebra scripts itself provides us inbuilt functions. Okay. So you have a function for to create a circle. You have a function to create a line, point, and everything. Those GeoGebra does. But if you look at the backend of it now, what happens is that GeoGebra script is automatically converted to a Java component that activates certain Java features and allows you to execute a particular function. Okay. So someone who has a good knowledge of JavaScript, TypeScript, or CoffeeScript, they can directly bypass this stage and directly execute this.
Acha, why I'm telling this? Because it has a time consequence with it. So when you code a script in GeoGebra and want to execute on the platform, right? Or you want to sync that platform from one side to a user side to a client side, then there will be a delay. But if you use a JavaScript, because it is a very widely used web browser scripts now, so the activation or the execution of the code will be very fast. Okay, so even if the companies who use GeoGebra, they avoid using GeoGebra scripts and rather jump to JavaScripts, so that their execution, their platform becomes very smooth and can be easily communicate with other platforms on globally. Okay, so your Chrome browser and everything just supports JavaScript very exceptionally. But for this session, because we at our beginner stage now, we will only work in GeoGebra scripts. Okay, probably someday in future we will look how the GeoGebra scripts are converted into JavaScripts and how the execution is done. But for now, we will only focus on GeoGebra component. Aside this, so another component which we will be working on today is logic operations. So simple understanding in how GeoGebra logic operations works. Let's see a couple of things. So if you want to assign something to any variable, okay, you use an equal to sign, or you want to define something. For example, I want to say that value of A is 2. So I will use an equal to sign. Okay, so equal to sign in logic operation will always use to assign or define some value or parameter. Whereas if you want to confirm something, whether the value of A is true or value of A is 2, okay, you use a double equal to sign. So double equal to sign allows you to verify. So you will see how we will be using that in future, in probably in a couple of minutes. So if you want to check whether the value of A is 2, then use double equal to sign. But if you want to change the value of A to some other value like 5, 6, 10.5, 1 by x, you use an equal to sign. Okay, there is another triple equal to symbol also, but we won't go to that higher operations for now. Okay, and like in every coding language, AND is represented by double ANDs. OR function is represented as OR, the parallel lines, and NOT is basically negation sign is equal to. So as the symbol says, right? And so when there are two conditions we want to simultaneously check. For example, the value of A is 2 and the value of B is 3. This is a condition. Okay. But our condition, I will tell you more in details, but just this is in theory condition. So if you want to check the value of A is 2 and B is 3. So we'll use A equal to 2 and B equal to 3. So this will give us one condition which will tell us that there is an AND association between. Similarly, there is an OR association and there is a NOT association. Okay. So just look at the screen for a couple of seconds and just try to memorize, or probably just look at it and think of it. Is there anything you feel an odd, or is there any issue? Okay, and do you think it is correct or not? Okay, some of you might have worked on scripts also, so you might be able to give a better answer. Okay, the exercise for this is just to memorize these operations. So these are the very basics of it. Okay, we will use the combination of these operations to define our condition and logics. Okay. So assigning is equal to, confirming is double equal to, and is symbol, or is parallel lines, and not is negation equal. Okay, let's try to see the logic command which we are talking about, if else condition. So if else condition is basically what the sentence is. If I do something, then there should be an action. Okay, if that condition is not fulfilled, then some other action should be taken up. So if you look at the first line itself, I have written if value of A is 2 and B is 3, then C will become 3, else C will become 4. Okay. So if you look at this statement, right? So there are three basic commands which we are using: if, then, and else. Okay. So if condition is basically pointing towards, if is basically pointing towards our condition. Okay. Then is basically telling us
what will be the impact of that condition. Else is telling us what will be a non-impact. Basically, if that condition is not fulfilled, what will be the counter impact of it. For example, if you do some, if you give you an example of a politics, right? So certain act is made by the government. Okay. So what will be the impact of that act? So that will be like certain actions will be taken up, certain actions will be taken up. If those conditions are not met, then certain other thing will happen. Similarly, is with the logic itself. So if else condition is basically focusing on if a certain condition is met, what will be its impact, and if not, then what will be its impact. Okay. So if you look at here, so in the after this point I have already written if then else are command. Green statements is just nothing but the condition which we are checking. Okay. And the blue statements are basically the impacts we will be facing of those conditions. Okay. In GeoGebra, the syntax is of this form, where we write an if double brackets condition separated by a comma, then its impact, then the else impact. Okay. So if I give you an example, if A equal to 2 and B equal to 3, then C equal to 3 and C equal to 4. If you look at it, is it visible? Should I make it zoom? It's visible. Now, can you tell me what are the condition and impacts here? Can I tell? Yeah. It's open. It's if A is equal to 2 and B is equal to 3. I don't know the code. Sorry, can you repeat again? Wouldn't hear you. If A is equal to 2 and B is equal to 3. That's it, I get it. I don't know. Okay, about so C that's equal your to- condition. Correct? Yeah. What happens to C and after That that? I don't know. Okay. Because in GeoGebra, we don't write like this. C equal to 3 and C equal to 4. This is basically an example of how it may differ, but this is an understanding. Okay. So इसका मतलब you है see- अगर A 2 B 3 हो तो C को 3 कर दो और उनमें से एक भी अगर अलग हो गया तो C को 4 कर दो. Star कर दो, exactly. So that's what we are talking about. So we are looking for a क्या particular. बोलो मुझे नहीं आया समझ ये इतनी जल्दी चला गया. बाजी बताओ आराम. So Robin was saying that अगर A equal to 2 है और B equal to 3 है simultaneously, okay, तो ही C की वैल्यू 3 होगी, वरना C की वैल्यू हमेशा 4 होगी. ओके ठीक है. So इसको लिखने का तरीका सिंटेक्स में भी डिफाइन करूंगा, बट जस्ट एन एग्जांपल कि क्या चेंज हो रहा है. ओके. सो यहाँ पे आप देखो मैंने इक्वल टू साइन यूज किया है. बेसिकली मैं असाइन कर रहा हूँ या सी को डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज किया है बिकॉज आई वांट टू वेरीफाई और कंफर्म द वैल्यू. ओके. सो ये अगर इस चीज को आप समझ लोगे तो 30 to 40% आप जियोजेब्रा में इजीली कोड कर पाओगे. ओके. So equal to is basically assigning and double equal to is basically confirming the values. Okay. अगर इसको हमें टेस्ट आउट करना है, so let's try to practice couple of cases here itself. Okay. So मैंने just सिंपल से 3 केसेस बनाए हैं जहाँ पे हम एक if else कंडीशन में राइट करके देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा. कि वैल्यू ऑफ k will be 2 if h is 4 and t is not equal to 4. Okay. So I'm just opening my text editor for now just to give you an example. Okay, so what I want to say is We can't see. We only see your slides. So you'll have to change the share screen. so you can't see the slide. हाँ. And we can only see the slides. वो नहीं दिख रहा. Should I reshare? हाँ. Share पे क्लिक करके change window. Screen पे किया था मैंने. Can you see the text editor? हाँ, अब दिख रहा है. हाँ. Okay, so if you look at the first statement, right, we are talking about value of k will be 2 if h is 4 and t is not equal to 4. Okay, so इसमें खाली हम if एक ही condition की बात कर रहे हैं. Okay, so अगर if को if I have to write like this, then what does it mean?
So if I write to like this, so it's talking about value of k will be equal to 4. Okay, if h is 4 and t is not equal to 4. So if h equal to 4 and t not equal to 4. So this is my condition basically. Okay, and this condition can be combination of multiple condition itself. अगर ये कंडीशन मीट करती है, so then k equals to 4 हो जाएगा basically. So this is what I'm saying. So यहाँ पे अगर देखोगे तो if और then condition है, यहाँ पे मैंने else की बात ही नहीं की है. So in GeoGebra we can write like this also. There can be an if condition, there can be then condition, and you can remove the else condition itself. Okay. So this is one way of writing. अगर मुझे else condition लिखना है, so I can just write k equal to probably 3 or something. So this will tell me else condition also. Okay. अच्छा, इतना क्लियर है? किसी को डाउट है इस पार्ट में? अगर इसमें तरुण हम अगर k इक्वल टू 3 एज कंडीशन नहीं लिखते तो जब भी h 4 नहीं होगा और t 4 के अलावा कुछ और होगा तो वो कुछ नहीं करेगा, मतलब अगर पहले Exactly. k की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं else कंडीशन नहीं लिखता. Like let me write it like this. हाँ, so in else ठीक है, there will be no change in values. हाँ. अब नो चेंज कह रहे हो तुम, यानी कि अगर ये k की पहले से कोई और वैल्यू है तो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी. Exactly. और अगर k की कोई वैल्यू नहीं है पहले तो k अनअसाइंड ही रहेगा. k की कोई ना कोई वैल्यू होगी जियोजेब्रा में, या तो 0 होगा या तो अनडिफाइंड हो, 1 होगी, 2 होगी. अनडिफाइंड. ऐसा नहीं हो सकता कि हम मतलब हमें अगर वेरिएबल हमने बनाया है पहले तो वो मतलब खाली वो कुछ ना हो उसमें. बना सकते हैं. So वो undefined ही रहेगा until तक. अनडिफाइंड रहेगा. अच्छा, ठीक है. Undefined रहेगा. If case you have not defined it as anything, it will remain undefined until unless ये condition meet होती है. Okay. ठीक है. अच्छा. Here anyone has a doubt? They can ask. Can you repeat it? मेरे को नहीं आया समझ सच में. So basically what I'm saying is कि syntax if का इस तरह का. So if के कंडीशन के अंदर इस तरह से. ओके, एक सिंटैक्स ये है कि आप if के अंदर कंडीशन लिखो और उसके बाद उसका इंपैक्ट लिखो. दूसरा सिंटैक्स लिखने का तरीका ये है कि आप सिर्फ के अंदर कंडीशन लिखो, उसका इंपैक्ट लिखो और उसका काउंटर इंपैक्ट लिखो. ओके, ये इतना क्लियर है पार्ट? ये तो क्लियर है, बट वो जो ऊपर लिखा है ना h इज इक्वल टू 4 एंड t नॉट इक्वल टू 4. अच्छा, ये वाला. k इक्वल टू 4 है तो वो जो कंडीशन है ना अभी जो पहले बोला था रॉबिन ने कि k को की वैल्यू को हम अगर 4 होती है तो इसके अंदर ऐड मतलब इंसर्ट करते हैं, राइट? इसको दोबारा देखते हैं. सो बेसिकली अगर मैं इसको इस तरह, सो कंडीशन को डिफाइन करते हैं. So condition basically क्या है? Condition is the parameter which I want to check. Okay. Condition is the parameter which I want to check. Okay. So what I want to check? I want to check whether h is equal to 4 and t is not equal to 4. इतना पार्ट समझ आया? हाँ. ठीक है. So syntax में ये पार्ट, इतना पार्ट बेसिकली इतना वाला, ये मैं एज इट इज कॉपी करके ऊपर लिख सकता हूँ. अगर मैं सिंटैक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट फॉर अगेन कंफर्मेशन. ओके, सो दिस इज द पार्ट विच इज द कंडीशन. मुझे ये चेक कराना है, सो आई कैन राइट कंडीशन एज इट इज. इज इट क्लियर? इतना पार्ट क्लियर है? हाँ. ठीक है. अच्छा, अगर ये कंडीशन हो रही है सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो देन मुझे विल बताएगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा. ओके, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि k की वैल्यू 4 चली गई. इतना पार्ट क्लियर है? ओके. अच्छा, अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती है सो क्या होगा? तो एल्स आएगा. इसका मतलब काउंटर इम्पैक्ट क्या होगा?
k will remain unchanged. इतना पार्ट क्लियर है कृतिका? हेलो, हाँ हाँ ओके ठीक। सो कंडीशन के के ऊपर है, बेसिकली HOT के ऊपर है। अगर ये मीट कर रहा है तो के के अंदर चेंज आएगा, अगर ये मीट नहीं कर रहा है तो उसका काउंटर इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं जो है एल्स कंडीशन। ओके, सो के विल रिमेन अनचेंज। सो हमारे सिंटेक्स में हम खाली एक ही वेरिएबल को चेंज करें तो हम खाली उसे मेंशन करेंगे के इक्वल टू 4। इसको कॉपी करके अगर हम लिख दें तो एग्जैक्ट, क्योंकि हमारा एल्स कंडीशन अनचेंज है तो इसको हम कुछ नहीं करते, एग्जैक्ट इसको लिखेंगे नहीं तब भी चलेगा कोड हमारा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सिंटेक्स। सो ये सिंटेक्स है बेसिक। सो कंडीशन देन, ये एक पहला सिंटेक्स है हमारा, और ये दूसरा सिंटेक्स है कि आप इसमें एल्स कंडीशन और जोड़ दो। तरुण, अभी हम ये जियोजेब्रा के सिंटेक्स के बारे में बात कर रहे हैं या हम इन जनरल जावा की उसके बारे नहीं में? नहीं, ये जियोजेब्रा का सिंटेक्स है। जावा का सिंटेक्स कुछ इस तरह करता है काम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी जो सबसे ऊपर इफ वाली लाइन लिखी है और जो तुमने हाँ। चौथे ये रो 8 में जो लाइन लिखी है उसमें इफ कंडीशन पे जो आगे वाली है वो ब्रैकेट में है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट है यस यस, अभी उससे। इसके बारे में बात करूंगा कि मैं कंडीशंस को कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। सी, ये कंडीशन 1 है, अगर मेरे पास 5 कंडीशन हो तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं 5 अलग अलग बार इफ लिखूंगा क्या? अच्छा, तुम कॉम्बिनेशन बना बना के ब्रैकेट में डालोगे हैं? करेक्ट। हाँ। ओके, सो ये इतना जावास्क्रिप्ट में इफ को लिखने का तरीका अलग होता है। जावास्क्रिप्ट में हम कंडीशन को यहाँ मेंशन करते हैं और उसका काउंटर इंपैक्ट को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और एल्स कंडीशन को हम यहाँ मेंशन करते हैं। ये कंडीशंस को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं या पहले से ये कंडीशन प्रोवाइडेड है? नहीं नहीं, ये कंडीशन हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर कस्टमाइजेबल। So all of these are customized. So condition is something which we are changing because we want to change something. Okay, मैं ये line डाल के confusion create कर रहा हूँ. Okay, so all of these are customizable. मैं अपनी need के हिसाब से change कर सकता हूँ. I will show an example just now, but just इस syntax को समझ लेते हैं because ये basic stone है इस चीज का. Okay, अच्छा, ये अगर हो गया, इसके बाद हम एक और कर लिखते हैं basically. ठीक है, अगला example देखते हैं. So अगला एग्जांपल कह रहा है वैल्यू ऑफ p will be 2 times of q if q is 5 और r is 4. ओके, तो इसको मैं लिख देता हूँ एज अ क्वेश्चन. सो कह रहा है वैल्यू ऑफ p is will be 2 times of q if q is 5 और r is 4. तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि q की वैल्यू 5 होनी चाहिए या r की वैल्यू 4 होनी चाहिए. सो q इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 4. अब यहाँ देखो, मैंने और की बात की है इसलिए मैं और के सिंबल को यूज कर रहा हूँ जो दो पैरेलल लाइंस की तरह लगता है कीबोर्ड. ओके, अगर ये कंडीशन मीट करती है तो मेरे पास देन का काउंटर इंपैक्ट आएगा, दैट विल बी p विल बी 2 टाइम्स ऑफ q. सो मुझे p की वैल्यू को असाइन करना है, इसलिए p इक्वल्स टू 2 स्टार q. ओके, एल्स के बारे में मैंने कोई बात नहीं की इसलिए रिमेन अनचेंज्ड. अच्छा, अब इसका फाइनल फॉर्म क्या बनेगा तो मुझे बता सकता है? ये है मेरे पास, ये है मेरे पास कंडीशन, ये है मेरे पास इम्पैक्ट, और काउंटर इम्पैक्ट है ही नहीं मेरे पास. सो क्या होगा? ये होगा लाइन नंबर 14 में जो कंडीशन है वो कॉपी पेस्ट विदाउट द अच्छा, टेक्स्ट. ठीक है, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया. और फिर कॉमा लगा के लाइन नंबर 15 में जो कंडीशन है वो कॉपी पेस्ट बिना Okay. देन के. बस. अच्छा, इतना पार्ट क्लियर है सभी को?
हेलो, यस मुझे हाँ लगता हाँ है क्लियर है, सब क्लियर है। सौरभ गर्ग इन द चैट। सौरभ का मैसेज आ गया है। ओके। अगर किसी को इस पार्ट में डाउट है तो एक बार प्लीज आस्क करो, क्योंकि ये बेसिक है, इसके बिना हम बना नहीं पाएंगे लॉजिक्स। तरुण इसमें एक चीज पूछनी थी, क्या कहते हैं, हाँ। ये जियोजेब्रा जो है, ये जब हमने ये लिखा है तो ये इसको ऐसे हाँ। पढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जैसे हम पढ़ते हैं, तो वो देखेगा पहले Q5 है या नहीं, फिर देखेगा R4 है या नहीं, फिर P को 2 टाइम्स Q कर देगा। अगर नहीं इसमें नहीं, अच्छा ये ऐसा नहीं इस पढ़ेगा, पूरे को एज अ एक साथ कंडीशन पढ़ेगा करेगा। यस। पूरे को। इसमें अगर मैं ऐसे लिखूं कि अगर Q5 है, अगर मुझे ये बताना है कि अगर Q5 है तो Q को 6 कर दो, समझ रहे हो अगर क्या Q कह रहा हूं? 5 है, Q को 6 अगर कर देना। Q5 है तो Q को 6 कर दो, तो हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा ना, वो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा कुछ कि ये नहीं नहीं क्या कर रहा है। नहीं, सो ये एज अ होल ट्रीट करा जाता है। सो अगर आप यहाँ देखो ना, सो कंडीशन एज अ होल ट्रीट कर जाती है। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस है, सब ब्रैकेट का यूज करते हैं ताकि उसको पता चले कि मल्टीपल कंडीशंस को रीड करना है। ओके, सो हियर द सिंटैक्स विल बी वेरी सिंपल कि कंडीशन होगी, उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को रीड करेगा एक साथ। ओके, ये इसका एक बेसिक आइडिया है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। Okay? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक थर्ड एग्जांपल चलता हूँ, जो फाइनल एग्जांपल है बेसिक सा, उसके बाद फिर हम कोडिंग पे आएंगे। सो थर्ड एग्जांपल है बेसिकली, वैल्यू ऑफ g विल बी 5 if sum of t and s is 3 or p and r is 7. ओके, सो कोई मुझे बता सकता है इसमें कंडीशन क्या होगी? अच्छा, कैसे देखते हैं? कंडीशन 1 और 2 कर देते हैं ताकि ब्रेक कर पाए, बाद में इसका मेन कंडीशन होगा। इसमें फर्स्ट कंडीशन है t प्लस एस इज इक्वल टू 3 एंड और के बाद जो कंडीशन है वो है p प्लस r इक्वल टू 7। ओके, सो t प्लस s। ओके, अब क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, डबल इक्वल आएगा, इक्वल्स टू 3। ओके, आप कंडीशन 2 है, इसको बाद में क्लब करेंगे, बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख रहे हैं। सो कंडीशन 2 कहती है p प्लस r इज 7, सो p प्लस r इक्वल्स टू 7। ओके, अब मुझे बता सकते हैं इनका कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन क्या होगा? इसमें यही आएगा t प्लस s इक्वल 3 एंड देन पैरेलल लाइंस एंड p प्लस r इक्वल 7। ओके, सो इसको अगर मैं इस तरह लिखता हूँ, एग्जैक्टली देखो जैसे बोला वैसे लिखते हैं, और उसमें बताना फिर गलती कहाँ है। अच्छा, अब इसमें कोई गलती बता सकता है क्या? t प्लस s को शायद ब्रैकेट में करके लिखें। एग्जैक्टली, सो जब आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ कोडिंग यूज कर रहे हैं तो सिंटैक्स क्या कहता है कि उनको डिफरेंशिएट कर दो। सो अगर मुझे एक पैरामीटर को चेक कराना है तो ये एक पैरामीटर है, ओके, कंडीशन का, इसके अंदर सेकंड पैरामीटर ये है। ओके, सो मैं अगर गलती- अब ये दो अलग पैरामीटर है, अब ये चेक करेगा और कंडीशन इस पूरे पैरामीटर पे जो एक बन गया है ये। ओके, सो ts प्लस को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, तो t प्लस मेरे s एक ख्याल से शुभम वेरिएबल कह रहा था है। कि t प्लस s ब्रैकेट में हो बस। नहीं नहीं नहीं, ये होल विल बी अ डिफरेंट ब्रैकेट। हाँ हाँ, मतलब ब्रैकेट ठीक है। ठीक ये है, पूरे को ब्रैकेट में डालना स्क्रीन पड़ेगा, ये तो शेयर बिना नहीं ब्रैकेट हो के नहीं रही। चलना चाहिए। नहीं नहीं, सो ये पार्ट ब्रैकेट में आएगा। सो ये एक पैरामीटर से, तो इसको एक बार इस तरह देखो, अगर t और s को मैं एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करें तो क्या होगा? अगर t प्लस s को ब्रैकेट में कर दें तो क्या होगा? सो देखो, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको, अगर आप जब हम करेंगे ना कोडिंग, तो मैं एग्जांपल दूंगा, t प्लस s को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो इस प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिंटैक्स इशू आ जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, वो ब्रैकेट को आगे वाला कुछ ब्रैकेट समझने लग जाएगा उसके लिए ब्रैकेट। Exactly. अच्छा 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 अच्छा, ओके, सो ये सिंटैक्स का बड़ा इश्यू रहता है। सो इसको समझ लो कि ये एक नया वेरिएबल है, ओके,
और हमारे लिए एक वेरिएबल है, ठीक है, पर कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसको ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर डालना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट कर पाए कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स का सेट है ये, ठीक है। अगर मैं इसको अब मैं इसको इफ एल्स कंडीशन पे मैंने लिखना है तो अब क्या होगा? अच्छा देन तो मैंने लिखा नहीं। अच्छा इसका देन कंडीशन क्या होगा? G डबल इक्वल टू 5, G इक्वल जी टू डबल G इक्वल टू 5 यहाँ पे लिखेंगे ना। ओके जी इक्वल टू 5, ओके। सो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, करेक्ट। एल्स क्या होगा इसका? कोई चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने Yes. एल्स के बारे में बात ही नहीं की स्टेटमेंट में, हाँ हाँ ठीक है ना। सो अनचेंज्ड, बेसिकली अनचेंज्ड होगा, ओके। अगर मुझे अब इसको इफ एल्स कंडीशन में लिखना है प्रॉपर्ली, सो अब क्या लिखूंगा मैं? यही कंडीशन जहाँ पे आपने लिखा है ये T प्लस एस डबल इक्वल टू 3 ब्रैकेट वाला, हाँ फिर ये पूरा कॉपी हो जाएगा। अच्छा ये पूरा कॉपी हो गया, आगे कॉमा देन जो देन कंडीशन है वो G इक्वल टू 5, ओके बस यही आगे? है शायद, यही डबल बस इक्वल यही टू है। 5, डबल इक्वल टू 5 नहीं, अगर डबल double इक्वल टू equal 5 सिंगल इक्वल टू आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, मतलब एग्जैक्टली हम Verify उसे नहीं। बोल रहे हैं कि इसकी हाँ। वैल्यू को चेंज करो, साइन करो, हाँ हाँ ओके। सो आई थिंक इतना लॉजिक आपको क्लियर हो गया सभी का, करेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। अब इतना लॉजिक क्लियर है, इसके आगे चलते हैं। सो याद रखना, दोबारा एक बार जस्ट रीआइटरेटिंग, इक्वल टू इज बेसिकली फॉर असाइनिंग, डबल इक्वल टू इज बेसिक फॉर कंफर्मेशन, एंड के लिए हम एंड सिंबल यूज करते हैं, पैरेलल और के लिए हम दो पैरेलल लाइंस यूज करते हैं, और अगर नॉट के लिए यूज करते हैं तो एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू साइन, ओके। सो ये 3-4 पैरामीटर्स याद रखना। अब इसको हम चलते हैं, फिर एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ऑलराइट, एक बना लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं, और मैं एडवाइस दूंगा कि सभी अपने जियोजेब्रा पे एक अकाउंट खोल के साथ साथ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें, वरना ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ये ऑफलाइन में बन जाएगा? हाँ सब में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Tarun, you are on mute. हेलो, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जियोजेब्रा दिख रहा है। Yes. ओके ठीक है, लेट मी एक मिनट स्क्रीन साइज को मुझे एडजस्ट करने दो, फिर एक बार मेरी बात। ओके, सो स्टार्टिंग के लिए हम सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं, ओके। सो मैं वेरिएबल्स को क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स से मैंने a इक्वल टू अनडिफाइंड एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a इक्वल्स टू अनडिफाइंड दिखा रहा है, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा अभी तक, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, इसलिए वो स्लाइडर के फॉर्म में अप्लाई नहीं कर रहा।
लेकिन अगर मैं b इक्वल टू 0 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो उस लेटर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसको भी मैं अनडिफाइन कर देता हूँ। और एक वेरिएबल बनाता हूँ c इक्वल टू 0 फॉर नाउ। ठीक है, इनकी सेटिंग्स में बाद में छेड़छाड़ी करेंगे। वापस आते हैं। सो इनपुट बार के अंदर एक अच्छा फीचर ये है कि जियोजेब्रा में आपको जो भी कमांड चाहिए ना, आपको यहाँ एक बार लिखोगे तो उसका पूरा पॉपअप मिल जाएगा एग्जैक्टली कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसको बाद में हम कॉपी करके चेंज कर सकते हैं। एक अगर किसी भी कमांड को सर्च करना है तो जियोजेब्रा की स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है वेब पर। ठीक है, so these are all the GeoGebra scripts which are available to us. So इनका यूज करते हुए हम यूज करेंगे। So यहाँ पे लिस्ट के बारे में बात कर रहा है, इसको थोड़ा एक्सटेंसिवली बाद में पढ़ेंगे। ओके, और यहाँ पर और भी कमांड्स था, स्क्रिप्टिंग कमांड्स। ये एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, एक बार पढ़ना जरूर कि कितने टाइप की स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक लॉजिकल कमांड्स के लिए अलग से स्क्रिप्ट होता है। ये लॉजिकल कमांड्स है, ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और लॉजिकल कमांड्स में हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर को अभी एक्सप्लोर किया है। तो लॉजिकल कमांड में हमने सिर्फ इफ कमांड को एक्सप्लोर किया। सो देयर आर अदर कमांड्स व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। सो इसका एक बार सिंटैक्स भी दिखा देता हूँ कि प्लेटफॉर्म में कैसे दिखाया हुआ। ओके, सो ये वाला सिंटैक्स हमने पढ़ा कि इफ कंडीशन देन कि अगर n इक्वल टू 3 है देन x प्लस y इक्वल्स टू 4 पर n plus 3 x equals to y equals to 4. Similarly, there are other parameters also. Condition then else, condition then, condition 2 के बाद क्या? Then these are all the parameters which we can write. Okay, so एक ये will give you a brief idea how to write scripts also. वापस अपने उस पे चलते हैं। ठीक है, let me create a button also so that I can control things from there. सो चेक बटन इसको मैं कह रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, यहाँ पे मैं इसको भी क्रिएट करके रख दिया और मैं यहाँ पे 2 इनपुट वैल्यूज को ट्रैक करता हूँ। सो दिस इज माय इनपुट बॉक्स 1 एंड लेट मी क्रिएट एन इनपुट बॉक्स 2। ओके, सो दिस वन इज लिंक्ड विद A एंड दिस वन इज लिंक्ड विद B। इसका नाम को बदल देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। So its name, let it be A. So its name, let it be A underscore 1, and thus for second one, let it be B underscore 1. ओके, सो यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे A और B। सो दीज आर इनपुट बॉक्सेस जहाँ पे मैं A और B की वैल्यू डालूंगा और C मेरा बेसिकली चेक करने के लिए होगा। ओके, ठीक है, अब इसमें अब चलते हैं वापस, इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वो स्क्रिप्ट लिखूंगा जो मैंने अभी तैयार किया। किसी भी कंपोनेंट के अंदर ना जियोजेब्रा में अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो उसके स्क्रिप्टिंग पार्ट में आ सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्टिंग पार्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको 2 या 3 सेट मिलेंगे। ग्लोबल जावास्क्रिप्ट इज वेयर यू कैन राइट द जावास्क्रिप्ट, ओके, एंड इट विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। On update and on click, what is the difference between them? Okay, on click, as the name says, right, when you click on this particular element, आपका चाहे इनपुट बॉक्स हो चाहे बटन हो, अगर उस पर क्लिक करते हो तो सर्टेन स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगी। ऑन अपडेट, हाउ इन गेम, राइट,
कि आप कुछ कर रहे हो और आपने कोई वेरिएबल चेंज कर दिया, ओके, आपका कोई वेरिएबल चेंज हो गया और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा वो वेरिएबल चेंज हो गया और उसके रिस्पेक्ट में कोई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। फिलहाल मैं ऑन क्लिक के बारे में बात करूंगा, ऑन अपडेट में बाद में हम स्लाइड्स में खेलेंगे तब बात करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं एक स्क्रिप्ट डालना चाहता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि इफ a is 1 और b equals to 1 देन c की वैल्यू भी 1 हो जाए, else c की वैल्यू -1 हो जाए। ओके, सो लेट मी राइट अ कंडीशन here. So my question is if a equals to 1 and b equals to 1, then I want the c value to be equal to 1 or else I want the c to be -1. ये क्वेश्चन समझ आ रहा है सभी को? हेलो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड आल्सो, won't be able to understand. समझ आ रहा है। ठीक है, सो मैं एक टेस्ट करना चाहता हूँ जो हमने अभी तक सीखा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँ। ओके, सो अगर मैं इसको ये करता हूँ इफ कंडीशन के अंदर, दोबारा मैं उसी प्लेन करता हूँ। सो आई वांट a इक्वल टू 1 एंड देन b इक्वल टू 1। ओके, देन के अंदर मुझे क्या चाहिए, मेरा c 1 हो जाए। पर सी को जियोजेब्रा में ऐसे मतलब डायरेक्टली आप इक्वल टू 1 नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक कंडीशन लिखना पड़ता है सेट वैल्यू पर। तो यू नीड टू यूज अ कमांड कॉल्ड सेट वैल्यू। तो सेट वैल्यू ऑब्जेक्ट और उसकी वैल्यू को डिफाइन करता है। ओके, कहाँ गया ऑब्जेक्ट और वैल्यू, सेट वैल्यू। ये वाला पहले वाला होगा, इसके सिंटैक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो सेट वैल्यू मेरा c है और उसकी वैल्यू को मुझे 1 करना है। ओके, और मेरी एल्स कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है तो मेरी सेट वैल्यू को सॉरी मेरी c की वैल्यू को -1 कर दो। सेम कॉपी करके पैरामीटर को कॉपी पेस्ट करके c की वैल्यू को -1 कर दो। ओके, अब इस कंडीशंस को मैं इफ एल्स में अगर लिखूंगा तो इस तरह लिखूंगा, a इक्वल टू 1 and b equal to 1, then c set value c to 1, else c to -1। अच्छा, इतना समझ आया? जैसे पहले तो हम ऐसे कर रहे थे ना, सेट वैल्यू सॉरी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, एम आई ऑडिबल? नो, स्टिल fumbling. Just give me a second, let me correct my ear. Hello? Hello, am I audible? Yes, you're audible. आई एम आस्किंग, जैसे पहले हम कर रहे थे कि हमें कंडीशन दे दी कि a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, देन सिंपली हम देन कंडीशन में c इक्वल टू 1 कर रहे थे ना, क्योंकि हम c की वैल्यू असाइन कर रहे थे तब। तो यहाँ पे Correct, हमने correct. सेट वैल्यू क्यों यूज़ करा है? सेट वैल्यू बेसिकली क्या है, c इक्वल टू 1 असाइन के लिए यूज होता है। पर जियोजेब्रा में वो एक एग्जांपल था कि मतलब हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी वैल्यू को सेट करना है ना, असाइन करना है, तो उसके लिए कमांड होता है सेट वैल्यू। ओके, इट वर्क्स इक्वल, इसका काम ही यही है कि इसको इक्वल टू की तरह बन काम करेगा, है ना। ये सिंटैक्स है बेसिकली, इट इज द सिंटैक्स। ओके, दिस अप टिल नाउ व्हाट वी लर्नड राइट इज वाज द बेसिक, लाइक कि वो कह रहा है हाउ द कोड इज एग्जीक्यूटेड। ओके, अब हम इसमें बेसिकली हम सिंटैक्स को यूज करते हुए काम करेंगे कि काम करना चाहिए ना इन द। So set value is the code which will help us to assign. Okay, so set value if condition is met then set value c equal to 1. अगर कंडीशन नहीं मीट होती है तब भी हमें असाइन ही करना है, तब उस कंडीशन में c की वैल्यू -1 करते हैं। ओके, एनी डाउट? नो, इट्स क्लियर, थैंक यू। ओके, so let me copy this.
Let me go to the check condition. I'm now writing in this on click, not in on update, on click. Okay, so this part, ये error दिखाएगा, but do not worry about this. ये प्रोग्रेस है. Let's try it out. Okay, अब ये execute करने का तरीका है. Let me save all this. So हमारी कंडीशन थी 1 और b की वैल्यू 1. ओके, अब यहाँ पे c की वैल्यू को आप ऑब्जर्व करना. अभी c की वैल्यू 0 है. अगर मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ चेंज आया होगा. देखो, सभी को दिखा ये चेंज? हेलो. यस. ओके, सो क्या हुआ कि मैंने अपना आंसर वेरीफाई किया. सो मेरे पास 2 इनपुट बॉक्स थे. मैंने चेक पे क्लिक किया और इससे मुझे आंसर वेरीफाई हो गया कि सी की वैल्यू 1 पे ही सही आ रहा है. अगर मैं इसके, अब मैं इसको कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ. ओके, अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सी की वैल्यू -1. अच्छा, अब ये इससे फायदा क्या हुआ मुझे? इसका फायदा मैं बताता हूँ. अगर मैंने ये ले लिया और मुझे एक टेक्स्ट बच्चों को शो करना है कि उसको प्रॉम्प्ट दिखाने की आपका आंसर सही है या करेक्ट है. सो दैट्स करेक्ट. ये एक मैंने लिख दिया, प्रॉम्प्ट लिख दिया. ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं इसे. ओके कर दो कि ये करेक्ट प्रॉम्प्ट है. एक इस तरह इनकरेक्ट प्रॉम्प्ट लिख देते हैं. ट्राई अगेन. तो 2 प्रॉम्प्ट है ये मेरे पास. अब मुझे ये बच्चे को तब दिखाना है जब उसका आंसर सही हो या आंसर गलत हो. तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा. ये आंसर मुझे कब दिखना चाहिए? जब बच्चे ने आंसर सही दिया हो. तो मतलब मेरी जब सी की वैल्यू 1 हो, इक्वल टू 1 एंटर किया, ये सेट हो गया. और ये वाला प्रॉम्प्ट तब दिखना चाहिए जब सी की वैल्यू इक्वल टू -1. अभी सेट हो. अब मैं सी को 0 कर देता हूँ वापस. तो देखो अभी कोई प्रॉम्प्ट नहीं है मेरे पास. ओके, अब मैं अगर चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ट्राई अगेन. ओके, सो इस तरह मैंने एक सिंपल से एक फंक्शन बना दिया जिसमें बच्चे को मैं इनपुट बॉक्स दे रहा हूँ, वो आंसर दे रहा है 1 और 2 और वो चेक कर रहा है कि उसको अगर सही है या गलत है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट. ओके, दिस पार्ट इज क्लियर राइट टू एवरीवन? यार हम लोग अभी जियोजेब्रा स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं ना ये? यस. तो मैंने खाली एक ही स्क्रिप्ट लगा. अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने सिर्फ टूल बार और सारे एलिमेंट्स को यूज किया है और मैंने सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट लिखा है जो कि वैलिडेशन कर रहा है. ओके, ये आई. हाँ. ओके, सो वैलिडेशन के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट यूज किया. सो इसमें मैंने इनपुट बॉक्स को वैलिडेट करने के लिए स्क्रिप्ट किया. सो ये डिफरेंट फंक्शंस हम बना सकते हैं इस तरह. ओके, अब ये चाहते हो कि ये इनपुट बॉक्स भी पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या उसके साथ दिखे. सो एक वेरिएबल और बना दो कि जब वो वेरिएबल 2 हो तब ये आगे बढ़े. अब क्वेश्चन नंबर एक एग्जांपल देते हैं. रुको, मेरा तो चला ही नहीं यार. ये किसी का, किसी और सबका चल गया के? पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने. अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ये स्क्रिप्ट ना भेजता हूँ सभी. नहीं स्क्रिप्ट मत भेजो तुम मेरे को. मेरा क्यों नहीं चला मुझे समझ नहीं आ रहा. ये कैसे हो सकता है? अच्छा, अच्छा, इसको करने के लिए किस किस का नहीं चला प्रोग्राम? एक बार ट्राई करके देखो. चल गया क्या? मेरा जियोजेब्रा 5 है. चलेगा, उसमें भी चलेगा. सेट वैल्यू उसमें भी चलेगा. चलना तो चाहिए. ट्राई नहीं किया अभी. ट्राई करो सब. ठीक है, विदाउट ट्राइंग यू वोंट बी एबल टू. Can you show the ये script खाली again? बस सुन रहे हैं. तू कर रही है ट्राई? तू तो फोन से कनेक्टेड है. ओके, सो दिस इज द स्क्रिप्ट अगेन. अरे जो लैपटॉप को अभी सामने. अरे वो वाली स्क्रिप्ट दिखाइए, दिखाना. चेक की, चेक वाले बटन की स्क्रिप्ट. हाँ, ये रही ना. नहीं, उधर जियोजेब्रा में. जियोजेब्रा में सेम चीज लिखी है, कॉपी पेस्ट किया हाँ, लिखी तो मैंने भी सेम है. चल क्यों नहीं रहा है? दोबारा पेस्ट कर, ऐसे जूम करके दिखेगा. तरुण यस. यार एक चीज बताओ,
इसमें अगर हमने ऐसे ए और बी लिया है, तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि जियोजेब्रा इसे रैंडमली कोई वैल्यूज असाइन कर दे, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ए और बी का यहाँ पे रैंडम वैल्यू चाहिए। हाँ, रैंडम चाहिए। बेसिकली मान ले अगर हमें एडिशन का बनाना है कि दो नंबर आए हैं, तो उसका हाँ, ऐड करके तीसरे बॉक्स में स्टूडेंट डाल रहा है और फिर चेक कर रहा है, तो फिर वो रैंडम ए और बी का कैसे असाइन करके कैसे उसको दिखाएंगे? सो बेसिकली ए और बी रैंडम नंबर्स है, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, और बच्चा उसे चेक कर रहा है कि वो उसका आंसर सही है नहीं। तो इस प्रोग्राम को भी बना लेते कोई बड़ा प्रॉब्लम। सो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया पी। ओके, पी इक्वल टू, यहाँ पे कमांड है इसके लिए रैंडम नंबर। ओके, सो देयर इज अ रैंडम बिटवीन मिनिमम इंटीजर मैक्सिमम इंटीजर। ओके, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ मिनिमम। इसको मैं सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ। इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट इन सिंटेक्स एडिटर। सो रैंडम इंटीजर लेट्स से मैंने ले लिया 0, और ये ले लिया मैंने 5। ओके, सिमिलरली मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट कर दिया q, वो भी रैंडम बिटवीन 0 एंड 5। ठीक है, अब इन दोनों को अब ये मुझे बेसिकली स्लाइडर्स क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ जाके क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो p रैंडमली क्रिएट हो गया 5। ओके, इसी तरह मैं q रैंडमली। सो q रैंडमली 1 क्रिएट हो गया। इतना क्लियर है? ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब मैं इसको अगर सभी का ये बन गया तो मैं डिलीट करूँ या इसको ऐसे हाइड कर देता हूँ? नहीं, मेरे में भी एरर आ रहा है। एक मिनट, देखते हैं सभी का देखते हैं। मेरे में एरर आ रहा है कि प्लीज चेक योर इनपुट अनडिफाइंड वेरिएबल और इफ, ये सब एरर आ रहा है। एक मिनट, सौरभ पहले तुम्हारा केस सॉल्व करते हैं, फिर बाकी की हेल्प करते हैं। ठीक है। सो एक अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, सो लेट्स में मैंने टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ पी की वैल्यू को। सो दिस इज द 5। ओके, एक वेरिएबल और ले लेते हैं और क्यू। ये दिख रहा है 5+1। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ठीक है। सो ये मेरा 5+1 आ गया। अब मुझे इस पे चेक करना है कि ये मेरा जो सी की वैल्यू है ना, वो इसकी इक्वल है। ठीक है, इसी को उठा के यहाँ लगा देता हूँ। सो 5+1 बच्चा जो भी एंटर करेगा वो चेंज होगा। अब चेक कंडीशंस को बेसिकली मुझे मॉडिफाई करना है। चेक की स्क्रिप्ट को उठाते हैं, वापस ले जाते हैं और बनाते हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल कंडीशन है, करेक्ट। अब इस कंडीशन में मुझे क्या चेक करना है कि मुझे चेक करना है कि जो मेरा A1 है ना, बेसिकली ये वाला वेरिएबल, दिस वन, इसकी वैल्यू A की, इसकी वैल्यू P और Q के इक्वल हो। ओके, तो बेसिकली मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू ब्रैकेट P प्लस Q। अच्छा, ये क्लियर है इतना पार्ट? हाँ, ठीक है, मैंने कॉपी किया इसे, वापस ले जाता हूँ। अच्छा, किसी ने अगर इफ में आई स्मॉल लिखा है तो गड़बड़ होगा। ये केस सेंसिटिव होता है स्क्रिप्ट। ओके, दिख रहा है?
अभी -1 है सी की वैल्यू, अगर मैं चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये 1 हो गया, दिख रहा है सौरभ? अच्छा, हाँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज चेंज होती रहे ऑटोमेटिकली, तो मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा बेसिकली जो मेरी ए और पी की वैल्यूज को चेंज करता रहे। सो बटन पे क्लिक किया, एक बटन बना दिया, इसका नाम है चेंज वैल्यू। ओके, इसके अंदर मुझे क्या स्क्रिप्ट डालनी है, मुझे बेसिकली हर बार चेंज करना है इनको, ठीक है? तो मुझे हर बार इनको कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को, तो मुझे हर बार इनको कॉल करना है। ओके किया, ये सेट हो गया। अब इसको सेव करता हूँ एक बार ताकि सबको दिखे। अब मैं अगर चेंज वैल्यू पे क्लिक करता हूँ ना तो 0 2, अगर दोबारा क्लिक करूंगा 4 5, दोबारा 2 + 2 5 0। ओके, अब हर बार अगर मैं ये देखो 5 + 5 है, अगर मैं 6 पे अब चेक कर रहा हूँ तो देखो -1 चला गया। ओके, अगर मैं 10 डालूंगा तो ये वापस, और चेक पे क्लिक करता हूँ तो ये सही वैल्यू। लेट्स सी, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं वापस। किस किस का नहीं चला प्रोग्राम, उसको शेयर करके देखते हैं। रॉबिन, तुम्हारा चल गया क्या? मेरा कुछ नहीं चल रहा ये है। फिर से बताना ये टेक्स्ट कैसे ऐड किया, दैट्स करेक्ट एंड ट्राई अगेन। ये टेक्स्ट ऐड किया है तुमने बस, कैसे किया बताना, प्रोसेस क्या है? ये टेक्स्ट के लिए यहाँ पे जाओ, प्रॉपर्टीज बार में, यहाँ पे ABC टेक्स्ट करके आप क्लिक करो बाद में कैनवस पे, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। दैट्स करेक्ट। ठीक है, ये अटैच कैसे होगा? ये अटैच कैसे होगा? होगा? तो अगर आपने कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर दिया ना, उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन होता है एडवांस करके। एडवांस के अंदर कंडीशन टू शो लिखा होता है कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट दिखना कब चाहिए, इसलिए मैंने लॉजिक गेट्स के बारे में बताया। अगर मैं इसमें लिखता हूँ कि C = 1, तो ये पकड़ लेगा कि जब C की वैल्यू 1 के इक्वल हो तभी इसको शो करना है। ओके, सो जैसे नाम लिखा है ना, कंडीशन टू शो, सो ऑब्जेक्ट विल बी ओनली शोन व्हेन C is 1। ओके, इतना समझ आया? डाउट इसमें? हाँ, क्लियर है, क्लियर। क्लियर? तरुण भैया, यस। मेरा शुरू, मैं थोड़ा पीछे हूँ। ये जो आपने A1 बनाया था, A1 इसमें ये आगे जो बॉक्स है ये कैसे आया था? बटन डाल दिया था मैंने, अच्छा। फिर उसकी स्क्रिप्ट कैसे करी थी? अच्छा, ऐसा करते स्क्रीन शेयर करते करते हैं, किसी एक का कोई भी एक स्क्रीन शेयर करो, उसके फिर चलाओ। अच्छा, मैं ही करता हूँ। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? डेटा भी ब्लैंक आ रहा है। ओके, नाउ इट इज। हाँ, तो ये जैसे Okay. मैंने A1 डाला यहाँ पे, सो ये तो बटन बना दिया। बटन, हाँ ये मैंने बटन बनाया है। फिर ओके, पर हमें तो इनपुट बॉक्स चाहिए क्योंकि वैलिडेशन में इनपुट बॉक्स का करना है, हाँ, तो इसको डिलीट करके एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक मिनट। तो वो कैसे बनेगा? मैं सो वहाँ जहाँ से बटन का ऑप्शन था ना, वहीं पे हाँ। इनपुट बॉक्स का ऑप्शन है। ओके, इनपुट बॉक्स। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। कैप्शन में इसका नाम डाल दो A1, करेक्ट। ओके, और इसको लिंक करना है तो क्लिक करो, A से लिंक कर दो, A से। ओके, ठीक है। सो ये एक बन गया। उसी तरह दोबारा क्लिक करके ये आया नहीं दोबारा, जैसे मेरे को नहीं, बाहर कैनवस पे क्लिक करो, कैनवस पे। हाँ, आ गया। इसका नाम चेंज करना पड़ेगा आपको, सेटिंग्स में जाओ। B1 और इसको अभी आपने किसी से लिंक नहीं किया, ये भी हाँ। आपका लिंक नहीं किसी से। सेटिंग्स में जाओ और हाँ, यहाँ पे डेफिनेशन है ना इनपुट बॉक्स, यहाँ पे लिखो B B और एंटर प्रेस कर दो। B एंटर प्रेस कर दो, नहीं एंटर प्रेस करो, B। ओके, सो जो भी B से वैल्यू थी वो असाइन हो गया, ठीक है। मैं डिलीट हो गया वो। दोबारा क्लिक करो, डिलीट हो गया। ये करा मैंने, यहाँ पे हाँ। करा, इसको B1 नाम दे दो और लिंक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो।
ये बी से, ये B1 क्यों बी आ से रहा है? लिंक करो, नहीं बी से लिंक करो, बी से। ठीक है, ये हो गया। Nice. अब मेरे को इसकी स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी। नहीं स्क्रिप्ट देखो, स्क्रिप्ट किस में करना है ये समझो पहले, हाँ, लॉजिक समझो। जो बटन आपका वैलिडेशन करेगा उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखा जाएगा इनपुट बॉक्स में। सो चेक बटन पे क्लिक करने के बाद वैलिडेशन हो रहा है, करेक्ट? हाँ, सो चेक बटन के अंदर स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। ओके। तो मैंने इसकी स्क्रिप्ट ये लिखी थी, इफ a डबल इक्वल टू 1 स्पेस डबल एंड b, यही है। एग्जैक्टली। ठीक है, आई इसका कैपिटल होगा, इसका इफ का i कैपिटल, हाँ i कैपिटल। तो अब ट्राई करके देखो। इसके बाद मुझे जैसे एंटर करना होता है या कुछ करना होता है, या सिर्फ से यहाँ से एंटर करके क्लोज कर दो। अब मैं चेक पे क्लिक करूँ? हाँ करो। अभी -1 पे है, इसको 0 पे लाओ, सी को पहले। 0, अच्छा मैं कैसे यहाँ सी पे, देखो, सी आपके अलजेब्रा व्यू में सी है। मैं यहाँ पे 1 लिखूँ? हाँ 1 लिखो। ओके, ये 1 अब चेक करो। ओके ओके, ठीक है। ठीक है। So basically this is how we are using the if logics. Okay, so we are writing a condition and then validating the value, और उस पे फिर हम उस पे टेक्स्ट शो कर सकते हैं। वो ठीक है। मैं और किसका प्रोग्राम नहीं बना है ये वाला? करो स्क्रीनशॉट किसी का जिसका नहीं बना। मेरा नहीं बना है, मैं करती हूँ। हाँ। जब सो ए की वैल्यू डिफाइन की, बी की वैल्यू, दैट्स करेक्ट एंड ट्राई। चेक की स्क्रिप्ट देखो। अच्छा सुन, इफ और इसके बीच में स्पेस नहीं आता, ब्रैकेट्स के बीच में। ओके, So this language is case and space sensitive. Okay. अगर आपका केस और स्पेस में कोई इशू होगा तो उसे एरर थ्रो कर देगा। इसको क्लोज करके ट्राई करो, चेंज करो वैल्यूज को। जरा ओके, इट्स वर्किंग नाउ। ओके, एनीवन एल्स? किसी का जिसका नहीं चला? ओके, ठीक है। यू कैन रेज योर हैंड, लाइक वी कैन वर्क अपॉन दिस लेटर ऑन। सो बेसिकली इतना पार्ट आई थिंक क्लियर है। सो अब इसके बाद एक बार सेकंड प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो कि a + b = c समथिंग वैलिडेट करना, जिसके अंदर हम रैंडम नंबर्स क्रिएट। ये प्रोग्राम अगर जिस जिसका बन जाता है उसके बाद आज का सेशन इधर ओवर कर देंगे। तो अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है, सो बेसिकली अगर ये इफ एल्स कंडीशन आपने सीख लिया, सो मोस्टली 30 to 40-50% यू नो कि कैसे करना है जियोजेब्रा। ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं कि जैसे सेट वैल्यू हमने बात की, रैंडम की बात की, उसी तरह डिफरेंट इनबिल्ट जियोजेब्रा कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा, किसी भी प्रोजेक्ट को पकड़ो, उसके अंदर कैसे बनाना है वो देखो, और फिर सर्च करो नेट पे कि इसको बनाने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट लगेगा। तो मोस्टली 90% आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए। एक बार मैं डेमो दिखा देता हूँ लास्ट, उसके बाद फिर आप बना के कोशिश करना। अगर कोई भी इशू आता है मुझसे एक बार कंसल्ट भी कर सकते हैं।
Okay, so ओके, सो इसमें ये मैंने कोनिक सेक्शन पे काम किया था कुछ वक्त पहले। सो जियोजेब्रा के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल है पहले। ओके, सो मैंने हर एलिमेंट के ऊपर एक स्क्रिप्ट लगाया हुआ है। सो बेसिकली अगर मैं किसी चेक बॉक्स को क्लिक करता हूँ सो इसके अंदर कंडीशनल स्क्रिप्ट्स लगे हैं कि कौन सा एलिमेंट कब दिखना चाहिए। अगर मैं स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ तो क्या चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर मैं चेक बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो कौन सा एलिमेंट विजिबल होगा। सो ये इफ एल्स कंडीशन के जरिए हो सकता है। ओके, अगर मैं वैल्यू को यहाँ पे चेंज करता हूँ तो उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। ओके, अगर मैं वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करता हूँ तो क्या चेंज आएगा। वो सब चेंजेस आप छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स को देख के कर सकते हैं इस तरह का चीज। So ये all of these are very simple to do and if you try it out ये नेट पे से कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। बेसिक कंपोनेंट स्क्रिप्टिंग का मैंने बता ही दिया, उसके बाद रेस्ट यू हैव टू ट्राई दैट। अगर आपको स्क्रिप्ट सर्च करना हो तो जूम पे एक बार डाल देता हूँ चैट। ये इस लिंक पे आपको लगभग सारे स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल आपको लॉजिक कमांड्स के लिए कोई स्क्रिप्ट चाहिए, आपको प्रोबेबिलिटी कमांड्स के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, आपको स्क्रिप्टिंग अलग से चार्ट्स के लिए कोई स्क्रिप्ट चाहिए, अलजेब्रा के लिए चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल स्क्रिप्टिंग कमांड्स भी हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज को असाइन डीअसाइन कर सकते हैं, वैल्यूज को अपीयर और डिसअपीयर कर सकते हैं, पार्स नंबर सेट कैप्शन सेट वैल्यू, these are all available। अगर और डिटेल में जानना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी। सो इसमें हम जावास्क्रिप्ट में भी बात कर सकते हैं कि जावा में ये कितना फिजिबल होगा जल्दी करना एग्जीक्यूशन। मजा आ गया पाजी। सही में आपको अच्छा लगा? तरुण भैया मेरे को पूछना था, जैसे आपने कहा कि नेट पे एग्जांपल दिखना, तो मतलब कैसे मिलेंगे इस फॉर्म में? अच्छा देखो, सबसे आसान तरीका मैंने कैसे सीखा, कोई भी एक टॉपिक उठा लो जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने भी आपको दिखाया कोनिक सेक्शन के बारे में, ठीक है, लिस्ट डाउन कर लो कि मैं कैसे दिखाना चाहता हूँ कोई चीज। ओके, उसके बाद नेट पे देखो कि लोगों ने कैसे दिखाया और उस एप्लेट को, ये क्योंकि ओपन रिसोर्स है तो आप एप्लेट को डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी कंपोनेंट को खोल के उसके पीछे का लॉजिक पढ़ सकते हो। ओके, कि कैसे लॉजिक लिखा जा रहा है। तो मैंने लॉजिक का बेसिक आपको बता दिया है कि आपके पास एक सिंटैक्स होगा, उसके अंदर मैनिपुलेट कर रहा होगा किसी न किसी फॉर्म में। अगर उतना समझ आ गया तो आप बना दो। इसमें टाइम लगेगा, शुरू में स्मॉल से शुरू करो कि पहले चेक बॉक्सेस को कैसे करते हैं, वैलिडेशन कैसे करते हैं। और आई थिंक मैंने कृतिका को एक वीडियो रिसोर्स भेजा था, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे स्क्रिप्टिंग पढ़ाई जाती है और स्क्रिप्टिंग कराई जाती है। ठीक है, और मेरे पास कुछ और ट्यूटोरियल्स हैं, मैं वो भी आपको सेंड करूंगा कि बेसिकली हम कैसे स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है,